pleasant good morning to one and all present in my class. Okay, shall we start now? I think most of the students have joined. Let me continue my topic, please. Modal verbs. जिसको modals भी बोलते हैं हम. Modals verbs. Okay, the child who has logged in with the name of QWYK. So I won't allow you this way, beta. Sorry, I can't allow you. First, you have to change your name. I can't. Sorry. Change your name first. Log in with your own ID or name, you can say. Anybody else? Verb. Although the same question have been asked by me many times. So let me see. Voice Jogi, unmute yourself, beta. Unmute. Unmute yourself, please. Unmute karo, beta. Unmute nahi karoge to I am going to remove you. Really. If you are experiencing any network issue, do let me. Ravi Kiran. Okay. Ravi Kiran, unmute yourself, beta. I am asking about verb. Verb क्या है? It's an action word, right? Action word जिसको बोलते हैं. But it tells us state also. State of something. किसी चीज की, or you can call condition of something. Right? Got my point, beta? Okay. One thing I want to tell you. So whenever you construct any sentence, what is the structure of a sentence? Structure क्या होता है? Structure. Subject, verb. Subject you can call performer of an action. One who performs of an action. Performer, or you can call doer of an action. जो काम करने वाला है. Verb. कोई भी sentence verb के बिना complete होता ही नहीं है. Verb is must. So what I would say, verb is must है. अति जरूरी है किसी sentence में. Understood बेटा? हाँ जी, आवाज आ रही है. साथ में ना मुझे वो अपना साइन दिखाते जाइए, so that मुझे पता चलता जाए कि आपको कितना क्लियर हो रहा है और नहीं हो रहा है. ठीक है जी. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर. ये नहीं है. समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है. इट डजंट मीन कि सेंटेंस नहीं बनता है. बनता है. ब्रजेंद्र यादव, स्टॉप लाफिंग. इफ यू वांट टू लाफ, यू कैन गो आउटसाइड. गो एंड लाफ आउट देयर. गो. डोंट डिस्टर्ब माय क्लास दिस वे. Subject, verb and object. Understood? Do you want me to continue? So modal verbs, they tell us modality of an action. What do they tell us? ये क्या बताते हैं हमें? Modality बताते हैं. Modality, right? Modality का मतलब क्या होता है? किस मोड में, किस पोजीशन में जो कोई बात करी जाती है, उसको बोलते हैं modality. ठीक है. इसलिए मॉडल वर्ब्स कितनी हैं हमारी? कैन, कुड, मे, माइट, है ना? विल, वुड, शेल, शुड, डेयर नॉट, नीडंट. चलो नेक्स्ट हम करते हैं. चलो जी, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू, I hope you all have understood. I have just given you a bit of knowledge about verbs, like about sentence as well, how sentence is constructed. So modal verbs. First, we will do, I am going to throw a light on definition. Then we will move to structure. Third is about its usage, how we use it. You can write in your notebooks as well, beta. You can write. I'm giving you time. Okay. Let's see. So modal verbs definition. Modal verb is a type of auxiliary verbs. Modal verb क्या है? Auxiliary verb है that is used to indicate modality that is likelihood. Modality का मतलब क्या है कि मोड कैसा है, बात करने का क्या है. अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस यूज कर रहे हो लाइक मे आई गो, इसका मोड क्या है? इसका मतलब आप परमिशन लेना चाहते हो. इट्स मे रेन टुमारो, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है.
अगर आप परमिशन ले रहे हो लाइक मे आई गो, क्या परमिशन है इसकी? मे आई गो। इसका मोडालिटी क्या है, क्या मोड है इसका, क्या बात करने का ढंग है? इसका मतलब है आप क्या चाह रहे हो, आपको परमिशन चाहिए, क्या वे है इसका? आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। इस सेंटेंस, देखो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कैन आ जाए, मे आ जाए, तो ये क्या है, पूरा सेंटेंस हमें इससे पता चलता है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है, किस वे में कहना चाहता है, क्या वो परमिशन मांग रहा है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, या फिर एबिलिटी शो कर रहा है। अब इसमें देखिए बेटा क्या शो हो रहा है, इसमें क्या शो हो रहा है इसमें, हु विल टेल मी? अगर हमने कैन यूज कर लिया यहाँ पे तो क्या चीज यूज हो रही है, हु विल टेल मी? तो जस्ट बी विजिलेंट इन माय क्लास, I can ask any question from you. Khushpreet Singh, unmute yourself, beta. Khushpreet, unmute yourself, please. Yes, ma'am. So, what does this sentence tell us? I can lift this box. I can lift the box. What do we come to know about the sentence? I mean, what is the mode of an action? क्या पता चलेगा हमें? अगर कोई चीज आप कर सकते हो, इसका मतलब क्या होता है? क्या वो कोई परमिशन शो कर रहा है? क्या वो एबिलिटी? बॉक्स में जो बॉक्स में, अगर सिंपल सेंटेंस में यूज कर रही हूं कि मैं बॉक्स, ये बॉक्स की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। इससे क्या पता चलता है, क्या सेंटेंस का पता चल रहा है, क्या कोई काम होने वाला कोई है, काम कर रहा है, करेंगे कोई काम, करेंगे या कर सकता है? कर सकता है। तो सकता है का मतलब क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सकता? मीन्स एबिलिटी। इट्स शोइंग, व्हाट डज इट शो हियर? इट शोज एबिलिटी। समझ आ गई? जब कोई काम आप कर सकते हो, एबिलिटी होती है ना, कि काम करने की क्षमता होती है। समझ गए बेटा? इससे क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है एबिलिटी है, आई कैन डू दिस वर्क। अंडरस्टूड? अगर मैं जाता हूं, मे आई गो, आप परमिशन ले रहे हो। ऐसे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये मॉडलिटी बताते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब। अब दो तरीके की वर्ब्स होती हैं, ठीक है, देयर आर टू, दो होती हैं, सभी को पता है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। मैं साथ साथ में ये भी कॉन्सेप्ट बता रही हूं आपको। आई कैन, लाइक, 2 मिनट है, शी इज she is singing a song। चलो, अब ये तो आ गया हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। इज क्या है? वर्ब है। और कौन सी वर्ब है ये बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्प कर रही है, क्यों इसका नाम रखा? व्हाई वी हैव गिवन द नेम? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज इट इज हेल्पिंग singing। Because what happens, singing will never stand alone in this sentence. Suppose I write like this, she's singing a song, does it make any sense? क्या कोई सेंस बनेगी इसमें? बताइए जरा मेरे को, प्लीज टेल मी। she sing, I'm going to write she singing a song। So does this sentence alone make sense? No। क्या कोई सेंस बन रही है? कननप्रीत सिंह बताइए बेटा जरा, मुझे अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या कोई सेंस बन रही है इसमें? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। अफरोज, अनम्यूट योरसेल्फ।
यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या कोई सेंस बन रही है अगर मैं अकेला सेंटेंस इफ आई राइट लाइक दिस, शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या कोई सेंस बन रही है? नो बताइए जरा। मैम। नहीं बन रही। तो हमें नो मैम। किसकी किसकी जरूरत पड़ी? हमें इज की हेल्प की जरूरत है। तो हेल्पिंग। हाँ, सिंगिंग को किसकी जरूरत है? इज की जरूरत है भाई, तभी तो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब की क्या करती हैं हमेशा? हेल्पिंग जो वर्ब होगी, कई बार एक ही वर्ब होती है वो मेन वर्ब भी बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो बेटा है वो किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये बी की फॉर्म्स होती है ना, इज, एम, आर। ठीक है ना? तो ये इसकी हेल्प करती है। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको ये जो बेसिक चीज है वो समझ आ गई होगी, ये वर्ब एक्चुअली होती क्या है। ठीक है बेटा? डू यू वांट मी टू प्रोसीड? Please show me your thumb sign. If any query is there, you are free to ask me. Please don't hesitate. चलो, गुड। चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट, move on to next slide. It's a type of auxiliary you can call helping verb ही होती है, auxiliary जो verb होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम आते हैं। लिस्ट ऑफ मॉडल verbs, जिसको मॉडल्स बोलते हैं हम। हाउ मेनी? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, ought to, must। एक नीडंट भी होगा इसमें और एक डेयर भी आ जाएगा। कितने हो गए? 12 हो गए ना हमारे। ठीक है जी। These all can be called modals. अब देखिए, यूज अ बेसिक फॉर्म और इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द, ये जो स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन, हैव यू रिटन द डेफिनेशन? अपनी नोटबुक्स दिखाओ जरा मेरे को, मुझे भी पता चले व्हाट यू हैव रिटन। शो मी, शो मी, शो मी योर नोटबुक्स, व्हाट यू हैव रिटन। आई वांट टू सी। नोटबुक्स दिखाओ। Bring it closer. I can't see, beta. Okay. Vansh Jogi, show me your notebook. Vansh Jogi, show me your notebook. Have you written definition? Okay. Okay, okay, okay. Good. Kunal, Kunal Pal, show me your notebook, beta. Good. Payal, the child who has logged in with the name of Payal. Show me, show me. अपना कैमरा इस तरीके से रखो so that I can see everyone's notebook, what you are doing. Ranveer Kumar, your camera is off, so I am not going to keep you this way. Please don't expect this thing from me. Please मुझे blankets मत दिखाइएगा. I don't want to see blankets of your home. What I want to have a glimpse of your notebook. That is. Prince Yadav, why your camera is off? So I am going to remove you. अपना कैमरा इस तरीके से रखा करो कि मुझे दिखाई दे। हाँ, हर्ष, सिंपल गरेवाल, हाँ जी बेटा, शो मी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, गुड। ये जो बैठे हो ना आप इस तरीके से, रेडमी, मैं रेडमी आपको बेटा बाहर निकालने वाली हूँ, बिकॉज ये आपने ज्वाइन किस नाम से किया हुआ है? रेडमी। अपना नाम चेंज कर लो। आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अपने पुष्पा, स्टिल यू आर नॉट कनेक्टेड to your video. What's wrong with you? Check your internet connection before joining any class. Aksham Kumar, Sayyam Babar, Sukhjeet Singh Sidhu, Sumit Gautam, turn on your camera. जिसके कैमराज ऑफ है, आई एम गोइंग टू पुट देम इन वेटिंग रूम।
कैमरा ऑन करोगे तभी आओगे, अगर ऑफ रखोगे तो आई वॉन्ट अलाउ यू। पायल, हमेशा ही कैमरा ऑफ रहता है आपका। जो कैमरा ऑन रखेगा वही क्लास मेरी ज्वाइन करे, अदरवाइज नो नीड टू अटेंड माय क्लास, यू कैन लीव। ओके, चलो। So what is the structure? Okay, as I told you earlier that what is the structure of a sentence? Subject, verb and object, ये होता है ना। अब देखिए ये क्या है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, I must go to sleep, मुझे अवश्य सोने के लिए जाना चाहिए। अब I क्या है, काम कौन करने की, मीन्स क्या है, जो I है वो कौन है, परफॉर्मर है। किसको जाना है, I को जाना है। I कौन है, मैं। जो काम करने वाला होगा वो क्या होगा, इसका नेटवर्क इशू आ रहा है भाई, इसका नेटवर्क इशू है। सक्षम, आई हैव अ कैमरा, गेट इट फिक्स्ड बेटा, गेट इट फिक्स्ड। शशिकांत, ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स दे रखे हैं आपने। आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अवश्य सोने के लिए जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि क्यों, अब ये मॉडल वर्ब्स क्या है, मॉडल्स हैं। देखो, दे एक्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही हेल्प कर रही है, ऑल्दो ये स्टैंड कर रही है, लेकिन ये मस्ट जो है इससे हमें पता चल रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है, किस कंडीशन में बात कर रहा है। लाइक आई मस्ट, मस्ट कब आता है, ऑब्लिगेशन के लिए आता है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें पता चल रहा है कि वो कह रहा है अवश्य ही जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, ये भी आ सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे हमें मॉडलिटी पता चल रही है किसी एक्शन की, उसका मोड क्या है, उसका बात करने का क्या ढंग है, वो कहना क्या चाहता है, इससे हमें पता चलता है। तो मेन वर्ब कौन सी होती है बेटा, लाइक गो, वेंट, गॉन, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हो ना। बट कई बार सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, कई बार एक ही वर्ब होती है जो मेन वर्ब का भी काम कर जाती है, ठीक है। सो मेन वर्ब क्या है, गो। अब कॉम्प्लीमेंट आप सोचोगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वो दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट करना है तुम्हें सेंटेंस को। अच्छा, अगर मैं कहती हूं आई मस्ट गो, मैं अवश्य जाता हूं, अब दूसरा बंदा बोलेगा, सेकंड पर्सन विल आस्क वेयर, वेयर कहां पे, इसका मतलब ये अधूरा है ना सेंटेंस। तो तुमने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, टू लगाया। ये जो इन्फिनिटिव होता है बेटा, इन्फिनिटिव्स होते हैं टू वाले होते हैं, बट एक्सेप्शन इज देयर, ऑल टू हम नहीं इन्फिनिटिव्स में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो टू स्लीप ने क्या किया, यहाँ पे आके सेंटेंस को पूरा किया है, तो कॉम्प्लीमेंट है ये, अंडरस्टूड। वी कैन ड्रिंक सम वाटर, वी कैन ड्रिंक सम वाटर। अब हम क्या है कि हम कहते हैं कि वी कैन ड्रिंक सम वाटर, कि हम पानी जो है पी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अकेला यूज करती हूँ वी ड्रिंक सम वाटर, तभी भी सेंस तो देखो बन रही, हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक सम वाटर, चलो हम पानी पीते हैं। अगर कैन आ जाएगा, इससे क्या पता चल जाएगा, तुम्हारी क्षमता है पानी पीने की, ठीक है। पानी तो भाई हर कोई पीता है ना, हम पानी पी सकते हैं, सारे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते ना। सो वी कैन ड्रिंक सम वाटर, तो कैन ने हमें बता दिया उसकी क्या है, उसकी क्या है, क्षमता है, एबिलिटी बता दी। तो इस सेंटेंस से हमें ऐसे ही पता चलता है कि क्या कोई परमिशन मांग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या यहाँ कोई डिटर्मिनेशन शो हो रहा है। ऐसे ही ये जो हमारे कैन, कुड, मे, माइट, ये जो होते हैं बेटा, इन्हीं से ही हमें सारा पता चलता है किसी काम का या किसी बात का, कि किस वे में बोला गया है, उसकी बात करने का एक्चुअल पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट डज ही और शी वांट्स टू एक्सप्रेस। गॉट माय पॉइंट। लाइक दे शुड ड्रिंक वाटर, उनको पानी पीना चाहिए, उनको पीना चाहिए। तो ये शुड हम तब यूज करते हैं जब कोई एडवाइस, इसका मतलब जब हमने शुड यूज कर दिया, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भाई, शुड से एडवाइस दी जा रही है। ये जो शुड, कैन, कुड, मे, माइट आते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि क्या
एक्चुअल बात करने का क्या रीजन है, किस वे में बात करी जा रही, क्या कहना चाहता है, ठीक है जी। अब शुड है तो एडवाइस ही होगा ना। ही मे ईट सम फूड, अब मे है, अगर मैं कहती हूँ ही ईट सम फूड, वह खाना खाता है, इसका मतलब हमेशा खाता है वो। अगर मैं कहती हूँ ही मे ईट, मीन्स थोड़ी पॉसिबिलिटी सी हो जाती है, ही मे ईट, वो थोड़ा खाना खा सकता, हो सकता खा भी ले, हो सकता ना भी। देखा, मे आने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग ये जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। विजेंद्र यादव, हाँ स्टॉप वेयरिंग मास्क, बेटा वेयर आर यू सिटिंग, आर यू सिटिंग इन योर होम? Very good. You are following guidelines of Indian government. Very good. You should put mask. Good. Very good. She will do some exercise. अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? She will do some exercise. क्या वो कोई exercise, मतलब थोड़ी exercise करेगी? अगर हम लिखते हैं कि she does, वो करती है, इसका मतलब रोज करती है। देखा, सेंस हो गया ना चेंज। अगर she will, वो करेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो will है बेटा, ये डिटर्मिनेशन के लिए भी आता है। She will do some exercise. She will do some exercise. Got my point? क्या है कि वो एक्सरसाइज करेगी, she will do, डिटर्मिनेशन दिया जाता है। हाँ जी बेटा, समझ में आया? अपना थंब साइन दिखाते जाओ मेरे को साथ साथ में। अगर आपको स्ट्रक्चर, पहले डेफिनेशन समझो फिर स्ट्रक्चर समझो। अंडरस्टूड? डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? चलो जी, अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अब ये देखिए, मॉडल, मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स डोंट ऐड एस और ईएस। क्या कभी किसी सेंटेंस में आई कैन डू वर्क, ये ना कभी एस लेगा ना ही कभी ई एस लेगा, एस और ई एस नहीं लेगा। ये देखना इस चीज को ध्यान में, कभी एस और ई एस वैसे नहीं कोई लगाएगा। नो, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। ही कैन स्विम, दिस इज करेक्ट। ही कैन स्विम, दिस इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा जी, थंब साइन दिखाते जाओ साथ साथ में मेरे को। मॉडल्स, मॉडल वर्ब सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? सिंपल, जो आई कैन डू, सिंपल में देखो कोई प्रेजेंट में है तो ऑब्वियस है आप कैन का यूज करोगे। पास्ट के लिए आप कुड का यूज करोगे। अब कुड का हम कई बार फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं, क्या ना। अब कंटिन्यूअस के लिए आपको पता है इसको प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, बोला जाता है या नहीं बोला जाता? प्रोग्रेसिव बोला जाता है ना, वी कैन कॉल प्रोग्रेसिव बोला जाता है, राइट। आई कुड बी वर्किंग, ही कुड बी वर्किंग, इट कुड बी वर्किंग। जो आईएनजी वाले होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं। परफेक्ट होता है, इट मीन्स द एक्शन हैज बीन डन, जो एक्शन, जो काम हो चुका है। आई कुड हैव वर्क, आई कुड हैव वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं काम कर सकता था, किया नहीं भाई, किया नहीं, कर सकता था। ही कुड हैव वर्क, इट कुड हैव वर्क। ये जो परफेक्ट हो गया ना बेटा, ये हैव लेते हैं साथ में, ठीक है। अगर अकेला सेंटेंस है मीन्स मॉडल्स में लेगा ये, ठीक है ना। इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता। एक और चीज, जो हैड है ना हमेशा वुड हैव को लेके चलता है साथ में, कभी भी कुड हैव मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। आप अगर बोलो 90% केसेस में हैड जो है वुड हैव को ही लेगा। हैड किसको लेगा? वुड हैव को। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि आपको सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है जी, आईएनजी तो आएगा ही आएगा। अब परफेक्ट है, हैव तो आएगा ही आएगा। और क्या है, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों बन जाएंगे तो व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? यू विल यूज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यू, ये सारा स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टूड? शो मी योर थंब साइन। ऑल्दो मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी ये बोला जाता है, बट ये जो एडिशनल है वो नहीं लेती हैं साथ में, ठीक है। इसको इसका पार्ट माना जाता है, उसमें कंसीडर होता है। ये कैसे, किस सेंस में यूज किया गया? लाइक शी, शुड, शुडंट,
स्टे, उसको नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर हम कहें शी डजंट है, यहाँ पे डजंट है, तो ये डजंट क्या होगा, डजंट, और ये जो दो दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है बेटा, ये कभी भी साथ में नहीं आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप डजंट का भी यूज कर रहे हो, शुड का यूज भी कर रहे हो, ये क्या मतलब है, दिस इज रॉन्ग। तो मोडाइल्स में कभी डजंट नहीं आएगा, साथ में आएगा, बी की फॉर्म्स नहीं आएंगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। और कभी इन्फिनिटिव, जिसको आप टू का यूज कहते हो, या फिर आई एन जी, साथ में नहीं आएगा। अगर आप लगा दो टू शुड, टू माइट, too much, so this would entirely be wrong to say like this, to use. Got my point? हाँ जी दीपक कुमार, समझ आ रही है बेटा आपको? Have you understood? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।